ये होगी जी रिकॉर्डिंग जी। तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग दे the manufacturers along with the flux combine silica, kaolin or glass etc and make frit and then uh, make a powder of that frit. Now when a technician makes a crown or other thing from the porcelain powder, he simply remelts the fluxes without any significant increase in reaction between the flux and other components. So when you people or the technician is remelting or is making a crown, he is not doing anything except he remelts the material. Pigments, as teeth have different pigments, different colors, so pigments added to match the, इसको मैं इधर कर देता हूँ ताकि जो आता जाए उसको भी हम देखते जाए। या अल्लाह खैर क्यों नहीं जा रहा, के बाद हो गया चले जी। Natural tooth shades, to achieve natural tooth color, pigments are added and already described that always the pigments are metal oxides, heavy metal oxides, and in porcelains these are added because they are stable at high fusion temperatures. Now some feldspathic porcelain are supplied as opalescent. Opalescent. Opalescence is a light scattering effect achieved by addition of very small amounts of metallic oxide having higher refractive index and a particle size near to that of the wavelength of light. Natural teeth can display some opalescence, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, लेकिन इसमें ज्यादा होता है जो हमारा फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन होगी। या अल्लाह खैर, अच्छा थोड़े से हम लेट जाते हैं। Opalescent porcelain adds further to the ability to match natural tooth. Biocompatibility issue: uranium compounds in dental porcelains to simulate tooth fluorescence is now considered inadvisable, so they are not used nowadays. So if they are present, they gives an unnatural appearance under ultraviolet light, and also they create a potential health hazard. Now glaze. Glaze is a low fusing transparent glass which is used as a glaze over the completed body of porcelain restoration. पोर्सलिन रेस्टोरेशन कंप्लीट हो गई, अब उसके ऊपर जो आउटर कवरिंग हम कर रहे हैं उसको हम ग्लेज कहते हैं, एंड इट गिव्स एन impervious smooth surface and it also provide greater translucency to our crown or tooth, the prepared one. Smooth surface can also be obtained if glaze is not available.
It can be obtained through a carefully controlled temperature of the furnace. How? If the temperature is controlled, then the surface of porcelain will flow over all the parts of the crown and glaze with only a slight rounding of the contours of the restoration. समझ आ गई इस बात की? अगर हमारे पास ग्लेज नहीं है तो सिर्फ हमें अगर कंट्रोल का पता हो कि इतना टेम्परेचर हम दे देंगे तो ऑलरेडी वी हैव अ नॉलेज दैट इट contains glass. Glaze is also a glass. So if a control temperature is provided, then the glass which is present in the porcelain will flow and cover all the surfaces of the restoration. So it will provide as a glaze. But if overheating is there, then gross distortion of the shape will be there. Now manipulation porcelain powders already described, that mixed with water and then to produce a plastic mass and molded and carved before firing. Carved वही carving, जैसे हम वैक्स को कार्व करते हैं तो ये पाउडर है, ये ऐसे ही है जैसे आप कीचड़ के साथ कोई चीज बनाएं और आप उसको मोल्ड करें और कार्व कर लें किसी उसके साथ, तो ये सेम वही चीज होती है, कीचड़ जैसी कंसिस्टेंसी इसकी होगी. नाउ कार्विंग और ये मोल्डिंग हम क्यों करते हैं? फॉर इम्प्रूविंग आवर वर्किंग प्रॉपर्टीज, के बाद में हमें उसके ऊपर ज्यादा काम ना करना पड़े, हम पहले ही उसको सेट कर लें. नाउ feldspar acts as a binder, but a binder like sugar or starch is also added to some powders, not in all powders, to some powders. So keep it in mind that binder is feldspar and binders like sugar or starch can also be added. जी मुदस्सर इकबाल साहब क्या हुआ आपको? Now compaction and firing. Aqueous plastic mass of porcelain is compacted. Compacted कैसे होगा? किसी चीज के ऊपर रख के उसको कंपैक्शन कीजिए. कंपैक्शन कैसे हो सकती है? आप किसी चीज के ऊपर जैसे कीचड़ है आप रख दें, कीचड़ जैसी कंसिस्टेंसी कोई, तो टिश्यू पेपर ले लें, हाथ के साथ उसको दबा दें, किसी ब्रश के साथ दबा दें, उसको टैप कर दें किसी चीज के ऊपर इस तरह से, मतलब एक यूं करके, सॉरी ये यूं करके इस तरह से करके, ठीक है, तो ये टैप हो गया. तो ये सारी चीजें कंपैक्शन करेंगी. क्या होगा? उसके अंदर से पानी निकल जाएगा और ये सारी चीजें जो है ये पानी मतलब फ्लो आउट हो जाएगा और ये आपस में पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे. इस प्रोसेस को हम कंपैक्शन कहते हैं. As much as possible onto a platinum foil matrix. platinum foil क्या है? लाओ जी platinum foil भी ले आओ. किसी ने क्वेश्चन किया था platinum foil. आपके घरों में platinum foil पड़ा हुआ है अगर आप कभी किचन में घुसे हो तो? जी गए हैं कि नहीं गए? सारे सो चुके हैं लगता है. जी सर वो तो एल्यूमिनियम का होता है. हाँ तो आपने समझ नहीं है ना, आपने कौन सा प्लेटिनम को लेकर ये बिल्कुल सेम वैसी ही चीज होगी जैसे आपका प्लेटिनम में अगर ले लें तो फाइल जो होगा वो प्लेटिनम का हो जाएगा, एल्यूमिनियम का होगा तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा. तो इसकी अगर आप मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, आप
कोशिश करके देख लें, एल्यूमिनियम फाइल लें, उसके ऊपर कीचड़ लगा लें, बीच में ये चीजें मिक्स कर लें, और घर में ओवन तो होती है, उसके अंदर बेक करके निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो प्लैटिनम फाइल जो है, इसकी मैट्रिक्स का मतलब यही हुआ सेम। बस मेरा ख्याल से अब तो आप लोगों ने देख लिया, ये मेरे घर में भी पड़ा हुआ है, ये प्लैटिनम तो नहीं है लेकिन एल्यूमिनियम फॉयल है। तो इसको मैं अब काट लेता हूँ, थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ, ये यूं, ताकि आगे भी आपके काम आएगा ना। ये इधर को दांत पड़ा हुआ है, ये है जनाब, ये हमारा, इसको आप प्लैटिनम फाइल समझें, ठीक है जी। इसको अगर हम, ये कोई नीचे, ये हमारे पास डाई है समझे, मेरी उंगली, तो इसके ऊपर अगर हम इसको यूं करके चढ़ा देंगे, ये तो ये क्या बन गया, ये उसकी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है जी। समझ आ गई, ये होता है प्लैटिनम फाइल। किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि जी वो प्लैटिनम फाइल क्या होगा, तो ये डाई मेरी उंगली हो गई, डाई के ऊपर हमने प्लैटिनम फाइल भी लगा दिया आपके लिए। तो अब जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, कंपैक्शन करेंगे, तो क्या स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स विल बी रिड्यूस्ड एंड अल्टीमेटली दिस रिड्यूस फायरिंग श्रिंकेज। पानी नहीं होगा, फायरिंग का जो श्रिंकेज होगा, पार्टिकल्स नजदीक नजदीक होंगे तो श्रिंकेज भी कम होगा, ठीक है जी। तो एज आर मिक्सचर ऑफ पाउडर मिक्सचर consists of mixture of different particle sizes, though compact more easily than those particles which are of one size only. Now, how compaction occurs? Molded crown may be lightly vibrated, already described, which settle the powdered particles and bring excess water to the surface, and then blotted by an absorbent cloth. उन्होंने क्लॉथ लिखा है, लेकिन क्लॉथ कभी यूज नहीं होता, टिश्यू पेपर यूज हो रहा होता है। लैब, किसी लैब में जाके कभी देख लीजिएगा। पाउडर में भी पैटेड विद स्पैचुला, जैसे मैंने अपने हाथ के ऊपर यूं करके आपको दिखाया है, वो स्पैचुला के साथ भी हम इस तरह से पैट कर सकते हैं, टू अचीव द सेम इफेक्ट। और बाकी कंपैक्शन के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ कि फायरिंग, श्रिंकेज और ये वो रेगुलर कंट्रैक्शन, उसकी पूरी एंटायर सरफेस पे आ जाएगी, ओरिजिनल फॉर्म ऑन अ स्लाइटली रिड्यूस स्केल पे आ जाएगी, उसको मेंटेन करेगी। नाउ द फायरिंग, porcelain firing or baking through, same as you fire or bake a cake, except porcelain furnaces are electrical with muffles and a controlled temperature pyrometer, and they are usually fired under vacuum. They have a vacuum system. और कुछ भी नहीं है फायरिंग में, ठीक है जी। इफ दे allow firing under vacuum, porosity should be decreased or is decreased in finished material from 4.6% to 0.5%, ठीक है जी। समझ आ गई इस चीज की, फायरिंग वायरिंग की। नाउ ड्राइंग, ड्राइंग जो होती है ये थोड़ी सी फायरिंग से पहले की जाती है। आप गीले गीले किसी भी मटेरियल को रख दें तो क्या होगा, वो फट जाएगा। नहीं तो एक कीचड़ का गोला सा बनाए जिसमें पानी ज्यादा हो, और उसको गर्म कर लें, ओवन अपने घर का, माइक्रोवेव नहीं दूसरा, और उसके अंदर डाल के रख के देख लें, वो फट जाएगा। सेम प्रोसीजर इज देयर फॉर ड्राइंग before firing. If freshly compacted structure, wet structure is placed in hot furnace, steam should be evolved and the
object should crumble down or even it can explode. So it is normal procedure to dry the wet structure before placing into the hard surface and keep it in a warm atmosphere. Now, blackening and shrinkage. If temperature of the furnace is quite high, the binders, which are sugars and starch, they ignites and कभी वो बनाया किसी ने, क्या उसको कहते हैं, तो क्या चीनी को जला के क्या करते हैं, वो क्या नाम है उसका, तो चीजों में जो डालते हैं क्या उसका नाम होता है, चीनी को हम जलाते हैं तो कुछ बनाते हैं ना, क्या नाम है उसका, कैरेमल, वो जो हाँ ब्राउन कलर का होता है। जी जी जी, कैरामल। जब बनाते बनाते अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है या मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाते हैं तो फिर क्या होता है कैरामल का शब्द, सर वो काला हो जाता है। हाँ, तो बस सेम वही चीज यहाँ पे भी होगी, ये भी काले हो जाए, ठीक है ना जी, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीनी है, ठीक है जी। सो टू प्रिवेंट दिस, door of furnace is slightly left ajar. Ajar mean open before firing. थोड़ा सा वो गर्म होगा तो हम उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं या जब वो खत्म हो जाता है, ताकि प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन जो हैं वो एस्केप कर जाएं, जल के उसके ऊपर ही काला निशान ना दे जाए शुरू में जब हम उसको उसके अंदर रखते हैं। तो फिर उसके बाद जब वो सारा कुछ ड्राई अप हो जाए, then we have to close the door and to complete our firing stage. Now, shrinkage takes place as the fluxes behind the particle together, causing a uniform inward contraction of the whole mass. अब inward contraction की समझ आपको है, कुछ बता सकते हैं? जी, किसी को समझ नहीं आई इसकी? देखें, इसमें जितना मैस है हमारे पास, मटेरियल है, इसने श्रिंक करना है, तो श्रिंक में इनवर्ड कंट्रैक्शन ही होगी ना, आउटवर्ड तो एक्सपेंशन होती है, तो सीधी सी बात है, इसमें और कोई ऐसा मसला तो है नहीं। तो इसमें कंट्रैक्शन होगी और मैस जो है वो इनवर्ड अंदर की तरफ क्या होगा, इस तरह से श्रिंक करेगा। सो इफ इनवर्ड कंट्रैक्शन अकर्स, देन further additions of fresh material is necessary, and obviously before glazing, glaze से पहले, glaze के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो जितनी एडिशन करनी है आपने glaze से पहले कर लेनी है। Now thermal regulation, थर्मल रेगुलेशन का मतलब ये है कि आपने रेगुलेट करना है हीट को, ईदर यू आर कूलिंग और हीटिंग, दैट इट शुड बी स्लो, because porcelain is a poor conductor of heat and is brittle. If you or one should or one is going to place it in a rapid cooling or rapid heating, cracking and loss of strength are obvious. Accuracy, the accuracy of fit, accuracy लाजिम बात है, इसके अंदर हमने जो चीज बनाई थी, ये देखें, तो हमने इसके लिए accuracy of fit ही बनानी है ना, कि बिल्कुल accurately fit आए उसके ऊपर। तो अगर ये हमारी अब आप इसको पोर्सलिन समझे, इसको ये एक ही चीज से हम सब कुछ करेंगे, ये प्लाटिनम फाइल था, अब ये पोर्सलिन का क्राउन हो गया दांत के ऊपर, ये मेरी उंगली दांत है नीचे वाला, ठीक है जी।
तो एक्यूरेसी ऑफ फिट कहिए, इसके ऊपर आए और फिट बिल्कुल बैठ जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे? दिस एक्यूरेसी ऑफ फिट इज मेंटेन बाय बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब ये है कि हमने जब उसको वो किया तो ये श्रिंक हुआ, तो हमने देखा जहां पे डेफिशिएंसी है वहां पे बिल्डअप और कर दिया। ठीक है जी। एंड हाउ पोर्सलीन ऑन अ प्लैटिनम फॉइल क्लोजली अडॉप्टेड टू द डाई। यही मेरी उंगली के ऊपर जैसे हमने कर दिया था। सो दिस प्लैटिनम फॉइल प्रिवेंट्स फायरिंग, श्रिंकेज एंड इनएक्यूरेसी ऑफ इट। अब अगर ये है जैसे हम ये कर रहे हैं, तो नीचे इसके डाई है मेरी उंगली, अब इसको डाई समझें, ये पोर्सलिन, ये अपना प्लैटिनम फॉइल है। अब इसके ऊपर जितनी भी श्रिंकेज होगी ये इससे आगे नहीं जाएगी, ना डाई को श्रिंक करेगी ना ये श्रिंक होगा, प्लैटिनम फॉइल भी, क्योंकि प्लैटिनम का अच्छा खासा टेम्परेचर है जो हमारी पोर्सलिन से ज्यादा है। तो अब जो कुछ भी श्रिंकेज होगा सिर्फ उसकी ऊपर वाली पोर्सलिन पे हो रहा है, तो इसलिए एक्यूरेसी ऑफ फिट हमारा ठीक रहेगा। Now, shrinkage occur inwards toward the platinum foil and foil itself is not affected by firing. Now, अब इसके ऊपर एक और अगर हम आप इसको समझें कि ये जो है हमारा प्लैटिनम फॉइल है, ये इसके ऊपर हमने टूथ बना लिया, सॉरी ये प्लैटिनम फॉइल है, इसके ऊपर हमने वो टूथ पूरा बन गया हमारा। तो जब हम इसको बना लेंगे, ये सब कुछ बन गया, अब हमने इसको जब उतार लिया, ये डाई हमारी खत्म होगी, तो ये प्लैटिनम फॉइल भी हम निकाल लें और इसको अब आप इसको वो क्राउन समझ लें जिसके अंदर से वो प्लैटिनम फॉइल हमने निकाल ली है, या अगर हम कहते हैं इसके ऊपर आप किसी पेपर का एक बना ले क्राउन। अब वो बन गया, तो अब इसको हम जब रिमूव कर लेंगे तो क्या होगा, ये हमें 25 माइक्रोन मीटर, जो कि इसका एक्चुअल साइज है, इसकी थिकनेस है, प्लैटिनम फॉइल की जो थिकनेस होगी ये 25 माइक्रोन मीटर होगी। तो ये सीमेंटेशन के लिए हमें ये एक स्पेस प्रोवाइड कर देगा जब हम इसको रिमूव कर लेंगे। तो अब आपको कुछ अंदाजा हो गया कि प्लैटिनम फॉइल हम क्यों यूज कर रहे हैं। बाकी ये इसके बाद ये डिस्कार्ड ही होता है, ये किसी काम का नहीं रहता। नाउ कम्स द पोर्सलीन इनलेस डिस्क्राइब्ड। मेरा ख्याल से शायद इसमें एक पिक्चर भी होना हो तो हम आपको दिखा भी देंगे। ग्लेज गिव्स dual effects, improving appearance and removing surface imperfections, particularly porosities. Now, if we are constructing inlays, it is exacting technique because material shrinks and we have to exact it because by adding more material over that. So firing shrinkage has direct effect on the fit of the inlay. श्रिंकेज जब भी होगा तो उसके फिट के ऊपर वो प्रॉब्लम करेगा। सो फॉर दिस रीजन पोर्सलीन इनले वाज अ वेरी रेयर रेस्टोरेशन। पोर्सलीन के इनलेज हम नहीं बनाते, मैंने आज तक देखा ही नहीं है, सीधी सी बात ये पोर्सलीन का इनले। नाउ अब आगे जाके हमारे पास ये सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है। They say that castable ceramics and shrink-free materials are there. Castable ceramic क्या है? सेम जैसे हम कास्टिंग करते हैं मेटल की, इसी तरह से अब ऐसे सिरामिक्स आ गए हैं जिनके साथ हम उसको कास्ट कर सकते हैं, और श्रिंक फ्री मटेरियल भी आ गए हैं जो वो श्रिंक ही नहीं करते। तो उससे ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। पता नहीं कहाँ पे खत्म हुई है, हमने तो आज तक नहीं देखे हैं, और ना ही आपको वैसे भी कोई सिरामिक का इनले नजर आएगा। उसके अलावा एक और चीज आ गई है हमारे पास, कैड कैम सिस्टम, जो कि बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे वो जरकूनिया आ गया जी, और ये और वो जरकूनिया वगैरह, ये सारा कैड कैम सिस्टम के ऊपर आ रहा है। और कैड कैम सिस्टम जी कोई बता सकता है क्या है?
कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जी, और कंप्यूटर एडेड एडेड मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग। जबरदस्त। सर इसमें ऑप्टिकल इम्प्रेशन लेते हम जी वीडियो कैमरा से। हाँ बिल्कुल, उसका अपना कैमरा होता है, उसके साथ ऑप्टिकल इम्प्रेशन ले लेते हैं, उसमें हमें ये इस इम्प्रेशन की भी जरूरत नहीं होती। और मजे की बात यह है कि कैड अगर कोई सीखना चाहे तो पेशावर में हम उसको सिखा सकते हैं। कैम की बात नहीं करूंगा, कैड। और आप लोग वैसे सीख लें, काम का इसलिए है, जो पेशावर में जब छुट्टियां वगैरह हों, कि इस कैड से आप अपने लिए ज्वेलरी खुद डिजाइन कर सकते हैं। बाकी सब कुछ छोड़ें, लड़कियों के लिए खास तौर, अब तो खैर लड़के भी ज्वेलरी पहनते हैं, तो लड़कियों के लिए ये खास है। और डेंटिस्ट्री में अगर आप लोगों के पास कोई 2-4 करोड़ रुपए हों तो ये कैड कैम की पूरी मशीन लेके आप रख सकते हैं। सर पाकिस्तान में अवेलेबल है ये हाँ, मशीन्स? तो मैं पेशावर में आप लोगों को ऑफर कर रहा हूँ कैड की, ऐसी कौन सी बात है। कैम भी करा नहीं सकते सर, हैं, लेकिन मतलब कैम खरीदनी में थी मैंने। मटेरियल आप लोगों ने बहुत ज़ाया करना है, इसलिए हम कैम के ऊपर आपको नहीं लाने देते। तो कैड कैम दोनों चीजें पाकिस्तान में अवेलेबल है, पेशावर में अवेलेबल है। मैं कैड की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर एडेड डिजाइन आप पेशावर में कर। सर ये अलग अलग है, कैड और कैम एक ही मशीन का नहीं है नाम ये? नहीं 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 नहीं, नहीं। कैड कैम अलग है। कैड जो है आपने कंप्यूटर पे अलग से वो करना है, फिर वो आगे मिले हुए होते हैं दोनों, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब कैड सर जो है कैड में क्या पार्ट आएगा? आप लोगों की जी सर कैड में क्या, जी जी, कैड में सर जो कंप्यूटर होगा। अभी पढ़ा है उसमें हाँ तो मिलिंग इंस्ट्रूमेंट कैम में होगा? लाजमी बात है, मिलिंग तो वहीं पे होगी ना। कैड में तो आपने बनाना तो है डिजाइन, फिर कैड का डिजाइन तो आपने फिर देना है ना, डिजाइनिंग आपने करनी है बैठ के। तो कैम जो है वो मशीन फिर मिलिंग मिलिंग करेगी, सीएनसी होगी और वो दूसरी तीसरी ये वो सारी। तो सर अगर हम लोग कैड ही रखें, मतलब फिर उसमें मतलब वो सिर्फ हम लोगों को पिक्चर स्कैन करके देगा और आगे बनाने वाला हम बाय हैंड बनाएंगे? नहीं 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 नहीं, कैड तो मैंने आपको बताया ना कि वो कैड आप डिजाइनिंग सीख लेंगे ना, तो फिर कैम का भी आपके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा ना। जब डिजाइनिंग होगी तो फिर आगे सर मिलिंग तो मिलिंग का सिर्फ ज्वेलरी की डिजाइन बना के हमने क्या करना है? ज्वेलरी खुद बनाई तो ना। ये आप सोच रही हैं, आपको पता नहीं आजकल दांतों पे ज्वेलरी शुरू हो गई है। दांतों के ऊपर आपने देखा वो छोटे छोटे वो जी जो सर, चीजें लग रही हैं। जी तो सर, आने स्टार्स वाला वगैरह वक्त लगा होगा रहे ना, हैं। जी तो सर, जिस तरह लोगों के जिस्म पे टैटूज होते थे ना, अब दांतों के ऊपर से वो बने होंगे डिजाइन सारे। जी सर। तो ये आप लोगों को बनाने आने चाहिए होंगे मेरे हिसाब से। और आगे जाके टेक्नोलॉजी ने एडवांस होना है, ये पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल मेटल ये सारे गर्क हो जाएंगे, ये कैड कैम ही रहेगी अब, ये भी ध्यान में रखिएगा। मरीज आएगा आपके पास बैठेगा, प्रेपरेशन भी आपने नहीं करनी, वो भी कंप्यूटर करेगा, दांत बनाएगा, आपने कैमरा उसको वो देना है, उसने वो लेना है, आपने 15-20 मिनट में उधर बैठ के उसका डिजाइन करना है। उसके बाद अगले 5 मिनट के अंदर उसका दांत बना हुआ तैयार, ब्रिज बना हुआ उसके मुंह में आपने फिट करके 1-2 लाख रुपए जेब में डालना है और मुझे दुआएं देनी है। सर वो तो वैसे भी देंगे, आप फिक्र ना कीजिए, हमारी डेंटल आप ही पास करवा रहे। अल्लाह खैर करे। ये सिर्फ डेंटल नहीं है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये डेंटल मटेरियल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप एफसीपीएस क्या पूरी जिंदगी यही चीजें आपके काम आनी है। बाकी आपने जो कुछ सीखना है वो इसके काम का नहीं होगा। चलो अच्छा जी, शुरू करें जी आगे। प्रॉपर्टीज, एस्थेटिक इज एक्सीलेंट, परफेक्ट मटेरियल for the material, for the replacement of missing tooth substance, available in a range of shades at various levels of translucency. Inner layer of porcelain crown is normally constructed from a fairly opaque core material. Core material, core अंदर वाला हिस्सा कहते हैं, core of my heart, तो ये भी core material होगा, वो opaque होगा, which is overlaid with the translucent as compared to the core material, and it is the dentine. And the final coating of much translucent like enamel is the enamel porcelain.
which forms the outermost layer of your crown or bridge. Brittleness and cracks, as it is a rigid hard material, so it will be a brittle material. If surface irregularities or internal voids or porosities are there, then the strength is compromised. And powder, if present in fine grained structure, it provides us a uniform surface, more uniform surface than those material which have the coarse grain structure. जी मैंने एक क्वेश्चन आपसे पहले भी किया था, लेकिन आप लोगों को उसमें समझ नहीं आती है। अमलगम में हमने इसी किस्म का यही चीज आती है, क्योंकि ग्रेन स्ट्रक्चर तो एक ही आता है ना। Now, why we are using vacuum? To reduce the porosities. We must fire porcelain at reduced pressure, and it is possible through firing under vacuum. Now, if superficial cracks due to thermal stresses are present there, how we should minimize or avoid these superficial cracks? Simple is slow cooling from the firing temperature. If we rapidly cools, superficial cracks are obviously there. And fracture initiated from small surface scratches, if we grind, and these should be eliminated by smoothing or by further fusing. If we see surface scratches, we should smooth them or refuse or refire them with the controlled temperature. Cracks, if present in porcelain crowns, usually they are from inner unglazed fitting surface, and they propagate outward toward the exposed surface. क्रैक्स वहां पे होंगे और सुपरफिशियल क्रैक्स ऊपर की तरफ होंगे, और जो दूसरे क्रैक्स हैं पोर्सलिन में, ये नीचे की तरफ से आएंगी, जो इनर अनग्लेज्ड फिटिंग सरफेस होती है। वहां पे अगर वो हो तो वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो प्रोपागेट कर देंगे। प्रोपागेट ये ऊपर वाला भी करेगा, लेकिन इसको हम स्मूथ कर सकते हैं, इसको हम फायर कर सकते हैं, उस वाले को कुछ भी नहीं कर सकते। नाउ यू कैन सी दिस इज द क्रैक इनिशिएशन। ये देखिए यहाँ पे क्रैक पड़ा हुआ है, ये ब्लैक सा जो है नजर आ रहा है, ये ब्लैक। तो ये इनिशिएशन हुई है, ये क्रैक आगे बढ़ा और आगे बढ़ के आप देखें इसके और ज्यादा खुलता जा रहा है। तो ये क्रैक इनिशिएशन और क्रैक प्रोपगेशन जिसको कहेंगे वहां पे होगी, और ये हमेशा इनर सरफेस से होगी, और सरफेस से जो होगी वो अंदर की तरफ आएगी, वो एक अलग से खाता है। नाउ हाइड्रोलिसिस, इसको भी देखते हैं। Dental ceramics have a tendency to undergo static fatigue. If static fatigue is there, then the brittleness is more dangerous. If a material which is brittle
enough and goes static fatigue, it will lose its existence. It will be of no use. It will fracture easily. And what is the static fatigue? Static fatigue is a time dependent decrease in strength. Even we have, or even in the absence of any load applied on that object. सेम ये वही स्टैटिक फटीग है जो आप लोगों को होती है. किसी किस्म का कोई लोड आपके ऊपर नहीं होता. आप लोगों ने सिर्फ लेक्चर को सुनना होता है, समझने की कोशिश करनी होती है, लेकिन वो स्टैटिक फटीग आपको आके आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर एक मार्क्ड डिक्रीज ले आती है. समझ आ गई इस बात की? ठीक है. तो यही स्टैटिक फटीग जो है, ये ब्रिटलनेस उसकी को भी उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देती है. किसकी? पोर्सलीन को. Now this process when evaluated, and now this was thought that it should occur, or it occurs through alkaline hydrolysis of, ये क्या है? साइलेन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि कौन सा ग्रुप है? या ऑक्साइड ग्रुप है? साइलेन का ऑक्साइड के साथ है, हाइड्रोक्सिल तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग जो है वो ऑक्साइड ग्रुप के साथ होती है. नाउ alkalinity, if present there, it results to form solubilization of sodium oxide and potassium oxide, which forms part of the feldspathic component of porcelain. And now this weakening further accelerated by dynamic mechanical loading. आपने आगे कुछ खाना पीना भी तो है ना, ये तो नहीं है कि वो दांत बस आराम से पड़े रहेंगे. And the whole process starts the stress corrosion cracking, like the stress corrosion cracking which occurs in metals and alloys. So to overcome these problems, we have to reduce the sodium oxide and potassium oxide within the material.